Now section 36 is other deductions. So 36(1)(1), we have seen that we have earlier seen that if you are paying any insurance premium in respect of building, it is allowed as deduction under section 30. Then in respect of insurance, you are getting insured plant and machinery and furniture and fixtures insured, you are getting deduction under 31. Similarly, stock in trade, it's the most important asset. If you get your stock in trade insured, you pay insurance premium against the risk of damage or destruction. So insurance premium of stocks and stores against the damage or destruction thereof, stocks and stores against damage or destruction thereof, the same is allowed as deduction under section 36(1)(1). It is allowed as deduction under section 36(1)(1), provided the stocks and stores are used for the purpose of business or profession of the assessee. Then 36(1)(1)(a), it is the insurance premium paid by Federal Milk Cooperative Society towards the life of the cattle which has been owned by the members of Primary Milk Cooperative Society. Primary Milk Cooperative Society is supplying milk, oilseeds, fruits and vegetables basically to Federal Milk Cooperative Society. So if it is supplying, this Primary Milk Cooperative Society is supplying milk to Federal Milk Cooperative Society, and this Federal Milk Cooperative Society is getting the life of the cattle insured. Whose cattle it is? It is cattle of those villagers who are the members of the Primary Milk Cooperative Society. Then the insurance premium so paid by Federal Milk Cooperative Society, the same is allowed as deduction. Then health insurance premium of the employees. Health insurance premium of the employees. Health insurance premium of the employees. Here basically payment must be made by any mode other than cash. Payment must be made by any mode other than cash. So health insurance premium paid by any mode of payment other than cash by an employer on health of the employees under a scheme. Such scheme has been framed by GIC or say framed by any other insurer approved under Insurance Regulatory Development Authority. Then 36(1)(2) is bonus and commission to employees for services rendered. We are paying what? Bonus and commission to employees for services rendered. The same must not have been in lieu of dividend or profits. Now deduction here is subject to the provisions of section 43B. Deduction जो है is subject to provisions of section 43B. यानी पेमेंट मस्ट बी मेड कब तक? On or before the due date of furnishing the return of income, then it will be allowed as deduction in the previous year to which it relates. Otherwise the same is allowed in the year of payment. चाहे वो वॉलंटरी बोनस हो, चाहे वो ग्रोटिशियस बोनस हो, डिडक्शन मिलेगा. फिर 36(1)(3) में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है. 36(1)(3) में क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है. कैपिटल आप बोरो कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विल बी अलाउड एज डिडक्शन. पर ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल is subject to section 43B. अगर आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, नोटिफाइड एनबीएफसीज है, बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनसे अगर आपने पैसा लिया, कैपिटल बोरो करी, तो पेमेंट हो जाना चाहिए इंटरेस्ट का ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम. तब तो प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा. अदरवाइज द सेम विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ पेमेंट. अब वैसे असेसिंग ऑफिसर ये नहीं कह सकता कि भाई साहब आपने कैपिटल कौन बोरो किया, आपके पास तो रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हुए हैं. तो हेयर
The need of the assessee cannot be, say, examined or evaluated by the assessing officer. Then interest on own capital is not deductible. इसी हिसाब से अगर आपने लेट पेमेंट करते हो इनकम टैक्स का और आपको इंटरेस्ट लगता है उस पर, वो डिसअलाउड रहेगा, वो डिसअलाउड रहेगा. फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, before the asset is put to use, before the asset is put to use, shall be added in the actual cost of the asset. ये क्या हो जाएगा? The same will be added in the actual cost of the asset. फिर हमारे पास आता है बात क्या कि अगर आपने कोई जीरो कूपन बॉन्ड्स जारी किए हैं, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो ये सपोज कीजिए बॉन्ड है 1,000 रुपये का और मैच्योरिटी में आपको देने हैं इस पे 5,000 रुपये, और यहाँ पे लाइफ ऑफ बॉन्ड है 15 ईयर्स. तो ये 5,000 माइनस 1,000, 4,000 रुपये, ये हो गया आपके, ये अलाउ हो जाएगा डिडक्शन के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ सच बॉन्ड. सो देखिए द डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड calculated in pro rata manner, discount on zero coupon bond calculated on pro rata manner, the same will be allowed as deduction during the period of life of such bond. The same would be allowed as deduction during the period of, say, life of such bond. लाइफ ऑफ बॉन्ड की बात करें, ये स्टार्ट होगा पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ बॉन्ड, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ बॉन्ड एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ, से, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड. डिस्काउंट क्या हो गया? जो भी अमाउंट पेएबल बाय द इश्यूअर ऑन द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड, और जितना अमाउंट उसको रिसीव हुआ है ऑन इश्यू ऑफ बॉन्ड, इसका जो अंतर है ये क्या है? डिस्काउंट है. इस डिस्काउंट का डिडक्शन मिल जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, से, लाइफ ऑफ सच बॉन्ड. इस डिस्काउंट का आपको डिडक्शन मिल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, से, लाइफ ऑफ सच बॉन्ड. फिर 36(1)(4) के अंदर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कहाँ पे? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में. एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में, एज पर द लिमिट्स ऑफ द फंड, इसका डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B. यहां पे एम्प्लॉयर का है ये, यहां पे पेमेंट must be made on or before due date of furnishing the return of income. Payment must be made on or before due date of furnishing return of income. Then it would be allowed as reduction in the previous year to which it relates. Otherwise, same will be allowed in year of payment. In year of payment. ठीक है, यही
एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर 80CCD ऑन अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉई, या 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, या 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय विच से लेस, उसका क्या है, डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उसका आपको डिडक्शन क्या है, मिल जाएगा। सैलरी मतलब क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस टू द एक्सटेंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस टू द एक्सटेंड इट फॉर्म्स से पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। फिर बात आती है हमारे पास क्या, 3615, ये है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। ये है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, वो भी क्या है, डिडक्शन मिल जाएगा। द सेम विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B, सेम इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। फिर 3615A में आ रही है हमारे पास बात क्या, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम। Employees contribution towards staff welfare scheme. Same is treated as income of the employer, same is treated as income of the employer, और जब आप इसको जमा करा दोगे, when it is deposited in the relevant fund, जब आप इसका जमा करा दोगे रेलेवेंट फंड में, when it is deposited in the relevant fund on or before due date of relevant fund, तो इसका क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो जो भी सम which is received by the assessee from his employees as contribution to provident fund or employees state insurance fund या superannuation fund और any other employees welfare fund, एक बार तो ये सम क्या हो जाएगा, इनकम मान लेंगे, एक बार तो इस सम को इनकम मान लेंगे, और जब ये पैसा जमा करा दिया जाएगा इन द रेलेवेंट फंड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट फंड, तो इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर 3616 के अंदर क्या आ रहा है आपके, राइट ऑफ अलाउंस ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, यदि कोई एनिमल्स है वो आप यूज़ कर रहे हो किसके लिए, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, अदरवाइज देन है स्टॉक इन ट्रेड, उन एनिमल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उन एनिमल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या दे बिकम से परमानेंटली यूजलेस, वो डेथ हो जाती है या परमानेंटली यूजलेस हो गए वो एनिमल्स। तो जो डिफरेंस हो रहा है बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एनिमल एंड द सेल प्रोसीड्स ऑफ द कारकासेस, उसका डिडक्शन मिल रहा है। फिर 3617 के अंदर बेड डेट्स का डिडक्शन मिल रहा है। अगर सपोज कीजिए बेड डेट्स का डिडक्शन क्या है, तब मिलेगा जब डेट हो, इस डेट को the same has been taken into account in computing the income of the assessee of the same year या earlier previous year. It has become debt. It has become
बैड, और इसको क्या कर दिया है, रिटर्न ऑफ एज इरिकवरेबल इन द अकाउंट्स। ठीक है, तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब वेयर द अमाउंट ऑफ सच डेट और पार्ट देयर ऑफ has been taken into account in computing the income of the assessee of the previous year, in which the amount or part of the debt has become irrecoverable or in earlier previous years on the basis of income computation and disclosure standards। यानी ICDS के अनुसार तो क्या किया आपने, same has been recognized as income। ICDS के अनुसार तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया गया है, इनकम जैसे रिकॉग्नाइज किया गया है, बट सेम हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन अकाउंटिंग पर्पस। और अब ये इनकम क्या हो गई, अब ये इनकम क्या हो गई, बैड डेट हो गई। तो अब इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे अकाउंट्स में, सेम कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ इन अकाउंट्स, क्योंकि डेटर्स को क्रिएट ही नहीं किया आपने अकाउंट्स में। तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये बोल रहे हैं कि अगर ICDS के अनुसार इसको इनकम जैसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया था तो बिना राइट ऑफ किए भी आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा, बिना राइट ऑफ किए भी आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो वेयर द अमाउंट ऑफ सच डेट और पार्ट देयर ऑफ हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट in computing the income of the assessee of the previous year, in which the amount or debt or part thereof becomes irrecoverable or of an earlier previous year on basis of ICDS notified under 145(2) without recording the same in the accounts, then such debt or part thereof shall be deemed to be allowed in the previous year in which the part thereof or debt has become irrecoverable, and shall be deemed that such debt or part thereof is written on the accounts। अब जहां बैंक्स होते हैं वहां प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का डिडक्शन मिलता है। वहां क्या मिलता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का डिडक्शन मिलता है। वहां प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का आपको क्या मिल रहा है, डिडक्शन मिल रहा है। तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में जब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का डिडक्शन मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर क्या हो रहा है, अगर एक्चुअल बैड डेट एक्चुअल बैड डेट ज्यादा हो गई प्रोविजन से, तो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन वो बैड डेट तो प्रोविजन अकाउंट से मीट आउट कर लेंगे, और ओवर एंड अबव दैट वो क्या है, आप 3617 के अंदर उसका क्या मिलेगा, आपको अलाउंस मिलेगा। एक 3619 है, वो बता रहा है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। 3619 है वो क्या बता रहा है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। तो जो फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कंपनी एसएससी ने इनकर किया है, किसने इनकर किया है, कंपनी एसएससी ने इनकर किया है, इसका अलाउंस मिलेगा। कंपनी एसएससी ने फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर किया है, इसका अलाउंस मिलेगा। अगर रेवेन्यू नेचर का है, तो 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर। और ये कैपिटल नेचर का है, ये
कैपिटल नेचर का है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 1/5 of the expenditure shall be allowed as deduction. 1/5 of the expenditure shall be allowed as deduction. तो जब ये रेवेन्यू नेचर का है, when expenditure is of revenue nature, 100% will be allowed in the previous year in which the expenditure is incurred. 100% will be allowed in the previous year in which the expenditure is incurred. और जब ये कैपिटल नेचर का है तो 1/5 of such expenditure will be allowed as deduction in 5 equal installments. ठीक है. फिर आती है बात अपने पास क्या, अगर आप कोई सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हो, यदि आप सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हो, आप बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर रहे हो, डिडक्शन मिल जाएगा. सिमिलरली आपने कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, आप बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज कर रहे हो और आपने कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, उसका भी आपको डिडक्शन क्या है, एडमिसिबल हो जाएगा. उसका भी डिडक्शन आपको क्या है, एडमिसिबल हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 36(1)(7)(a), प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. 36(1)(7)(a) प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का डिडक्शन किसको मिल रहा है, बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स आ गए, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आ गए, कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए, अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक. उसके अलावा मतलब बैंक्स आ गए, फॉरेन बैंक्स आ गए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आ गया, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन आ गया और नोटिफाइड एनबीएफसीज आ गई. अब कितना प्रोविजन अलाउड है इन केस ऑफ दीज शेड्यूल्ड बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स? कितना प्रोविजन अलाउड है? 8.5% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम. 8.5% of gross total income before allowing deduction under this section. Before allowing deduction under this section. Plus 10% of the aggregate average advances made by रूरल ब्रांचेस. ठीक है, 8.5% तो ये हो गया, और 10% ऑफ द एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय रूरल ब्रांचेस. उसके अलावा जो भी इनकम बैंक्स के केस में इनकम डिराइव्ड ऑन रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज, जो कि क्रेडिटेड है इन P&L अकाउंट, इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा. इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोविजन के फॉर्म में. और फॉरेन बैंक्स हो गए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हो गए, नोटिफाइड एनबीएफसीज हो गई. इसमें क्या है, 5% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर मेकिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, उसका क्या मिल रहा है, डिडक्शन आपको मिल रहा है. उसका डिडक्शन मिल रहा है. फिर बात आती है हमारे पास क्या, सेक्शन 36(1)(8). ये ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व्स. ये ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व्स है. किसके रिलेशन में? फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस जो कि कंपनी है, कंपनीज एक्ट के तहत रिकॉग्नाइज्ड है, या फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक. तो ये जो
पर्सन्स हैं, दे आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्या, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ से इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया, या डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग इन इंडिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग इन इंडिया, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो कि फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिंग आउट दी प्रोवाइडिंग क्या, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। तो जो इनको डिडक्शन मिल रहा है डिडक्शन इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला हो गया अमाउंट ट्रांसफर्ड टू स्पेशल रिजर्व अकाउंट। पहला हो गया अमाउंट विच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू स्पेशल रिजर्व अकाउंट। दूसरा हो गया ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, प्लस जनरल रिजर्व माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पेशल रिजर्व। और एक हो गया तीसरा 20% ऑफ प्रॉफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम सच बिजनेस, 20% of profits derived from such business before making deduction under this section. Before making deduction under this section. ठीक है, इन तीनों में से जो भी कम है, अगर कोई अमाउंट इज विथड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व अकाउंट, अगर कोई अमाउंट आपने विड्रॉ किया है किससे, स्पेशल रिजर्व अकाउंट से, तो ये अमाउंट जो आप विड्रॉ करोगे, ये अमाउंट जो आप विड्रॉ करोगे, सेम विल बी व्हाट, चार्जेबल टू टैक्स whether the business is in existence or not. Same would be taxable whether the business is in existence or not. So any amount withdrawn from reserve account for which deduction has been allowed here, the same is taxable as deemed profits in the year of withdrawal, whether or not the business is in existence or not. Then 36(1)(12) ये बोल रहा है कि यदि आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर किया है, कौन सी स्टेटरी कॉरपोरेशन ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर किया है इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पसेस ऑथराइज्ड बाय द एक्ट। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नोटिफाइड कॉरपोरेशन और बॉडी कॉरपोरेट constituted established under any act, such expenditure should be incurred for the objects and purposes authorized by the act. That expenditure would be allowed as deduction. That expenditure would be say allowed as deduction. ठीक है, फिर next देखो, any sum paid by public financial institution, any sum paid by public financial institution by way of contribution towards credit guarantee fund trust, by way of contribution towards what, credit guarantee fund trust for small industries. तो public financial institutions ने जो contribution किया है
बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसका डिडक्शन मिल रहा है। इसी हिसाब से अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसी हिसाब से अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, वो किस में एंगेज है? इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, और वो क्या खरीद रहे हैं? वो शुगर केन खरीद रहे हैं। वो क्या खरीद रहे हैं? शुगर केन खरीद रहे हैं विद लेस देन और इक्वल टू द मिनिमम रिजर्व प्राइस, उससे कम है या उसके बराबर है, प्राइस फिक्स्ड और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर क्या होगा? उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर डिडक्शन क्या हो जाएगा? एडमिसिबल हो जाएगा। फिर है मार्क टू मार्केट लॉस या अदर एक्सपेक्टेड लॉस, इसका जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा इन अकॉर्डेंस विद द इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। उसका डिडक्शन जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? इन अकॉर्डेंस विद इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो ये अभी अपन ने सेक्शन 36 से रिलेटेड जो है डिडक्शंस क्या है डिस्कस किए। नाउ सेक्शन 37 इट इज डीलिंग विद जनरल डिडक्शन। 37 में जनरल डिडक्शन की बात कर रहे हैं। जो एक्सपेंडिचर जो है वो 30 से 36 की नेचर का नहीं होना चाहिए। अगर 30 से 36 की नेचर का होगा तो वही मिल जाएगा। कैपिटल नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, इनकर्ड फॉर बिजनेस होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर के अंदर उसको खर्चा किया हो तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो एक्सपेंडिचर शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएसी। कैपिटल इन नेचर नहीं होना चाहिए, 30 से 36 की नेचर का नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी होली एंड होली एक्सपेंडेड, बेसिकली एक्सपेंडेड होली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यदि कोई आपने एक्सपेंडिचर किया है फॉर एनी ऑफेंस या प्रोहिबिटेड अंडर लॉ तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया है इन अ मैगजीन विच हैज बीन पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, सोवेनियर, ट्रैक्ट, ब्रोशर, मैगजीन पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन shall not be एडमिसिबल। ठीक है, CSR का अगर आप खर्चा करते हो, सो हियर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी referred under section 135 of the Companies Act shall not be deemed to be an expenditure incurred by the SSE for the purpose of business or profession। ये बिजनेस और प्रोफेशन का खर्चा नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है विच इज ऑफेंस या विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, तो वो डिसअलाउड होगा। तो सच एक्सपेंडिचर बेसिकली दैट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी for any purpose which is an offense under or which is prohibited by any law for the time being in force in India or outside India, the same would not be allowed deduction। या फिर आपने कोई एक्सपेंडिचर इनका किया है to provide any benefit or perquisite in whatever form to a person whether or not carrying on any business or exercising the profession, and acceptance of such benefit or perquisite by such person in violation of any law or rule or regulation or guidelines as the case may be for the time being in force governing the conduct of person, उसका अलाउंस नहीं मिलेगा। इसी हिसाब से अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है टू कंपाउंड एनी ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, सच एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। देन आती है बात हमारे पास सेक्शन 40 क्लॉज ए की। सेक्शन 40 ए बताता है अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल, यानी ये स्पेसिफिक डिसअलाउंस की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है? स्पेसिफिक डिसअलाउंस की बात कर रहा है। तो देखिए 40A(1) में अगर आपने क्या किया है, पेमेंट्स
आउटसाइड इंडिया किया है या नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया है इन इंडिया, और इनकम इनकी क्या है, चार्जेबल टू टैक्स है। यहां पे तो खर्चा आप कर रहे हो, उनकी इनकम यहाँ टैक्सेबल है। अब इस एक्सपेंडिचर पे टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस आपने नहीं किया, या टीडीएस किया, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स बट नॉट डिपॉजिट नहीं किया। टीडीएस किया पर क्या है, डिपॉजिट नहीं किया। कब तक डिपॉजिट नहीं किया? ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। टीडीएस किया पर जमा नहीं कराया। कब तक जमा नहीं कराया? ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर का 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। अब अगर टीडीएस is deducted in next year and deposited in next year, so deduction will be allowed in next year. देखिए, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर नॉट डिडक्टेबल। बेसिकली क्या हो रहा है, या तो पेमेंट्स विच आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट वो आउटसाइड इंडिया आप पे कर रहे हो, या फिर नॉन रेजिडेंट्स को इंडिया में पे कर रहे हो जिस पे टीडीएस आपने नहीं किया, या किया पर जमा नहीं कराया। कब तक? ऑन और फॉर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ये एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होगा। हाउएवर, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम tax has been deducted in any subsequent year, yet deducted during the previous year but paid after the due date, deducted during the previous year but paid after the due date, then such sum would be allowed as deduction in computing the income of subsequent previous year in which the tax has been so deducted and paid. अब बेसिक चीज़ है, सपोज कीजिए आपने पेमेंट कर दिया, आगे अपने को कोई और पेमेंट नहीं करना जिस पे टीडीएस, जिससे वो सम टीडीएस किया जाए। अब अगर जो रेसिपिएंट है उसने उस सम को अपने इनकम कंसीडर कर लिया, उस पे टैक्स जमा करा दिया, उसका रिटर्न भेज दिया और आपको इस विषय में सर्टिफाई कर दिया कि भाई मैंने ये अपनी को इनकम करके कंसीडर करके इसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स जितना बनता है वो मैं जमा करा चुका हूँ और मैंने अपना रिटर्न भेज दिया है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर ये टीडीएस किस दिन हुआ हुआ माना जाएगा? ये टीडीएस जिस दिन उसने अपना रिटर्न भेजा उस दिन ये क्या है, टीडीएस हुआ हुआ मान लिया जाएगा और डिडक्शन क्या है, एडमिसिबल हो जाएगा। तो बेसिकली वे द असेसी फेज टू डिडक्ट, वे द असेसी फेज टू डिडक्ट whole or part of tax on any such sum but is not deemed to be an assessee in default under first proviso to section 2011, that is payee has deposited the self-assessment tax directly, then it shall be deemed that assessee has deducted and paid the tax. It shall be deemed that assessee has deducted and paid the tax on such sum on the date of furnishing the return of income by the payee. On the date of furnishing the return of income by the payee. अब आती है हमारे पास क्या, अगर आपने 40A1A में, ये सेम है जो 40A1 था वैसा का वैसा ही ये सेम है, यहां पे हो रहा है पेमेंट्स टू रेजिडेंट्स, रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो ऑन विच टीडीएस नहीं किया या टैक्स हैज बीन डिडक्टेड but not deposited
but not deposited. कब तक? On or before due date of furnishing return of income. तो उस केस के अंदर क्या होगा? 30% of such expenditure shall be disallowed. उस केस के अंदर क्या होगा? 30% of the expenditure shall be say disallowed. यानी पेमेंट टू रेजिडेंट्स है on which tax has not been deducted या paid, 30% of such sum shall not be allowed as deduction. एनआर और रेजिडेंट में इतना ही अंतर है, वहाँ 100% डिसअलाउ हो रहा है, यहाँ 30% डिसअलाउ हो रहा है. फिर उसके बाद जब आप टीडीएस कर दोगे, मतलब जमा करा दोगे, अगले साल टैक्स डिडक्ट करके जमा कराया, तो फिर उस केस का अलाउंस मिल जाएगा अगले साल. जब 30% जो डिसअलाउ हुआ था वो 30% क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा. इसी हिसाब से आता है यहाँ पे एनआर को पेमेंट कर रहे हो जिसपे इक्वलाइजेशन लेवी लगनी है, एट रेट ऑफ 6%, और आपने इक्वलाइजेशन लेवी हैज नॉट बीन डिडक्टेड, या ये क्या हो गई है? इक्वलाइजेशन लेवी हैज नॉट बीन डिडक्टेड, या डिडक्टेड बट नॉट पेड, डिडक्टेड बट नॉट पेड. तो उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर डिसअलाउ. पे कब तक नहीं की? पे नहीं करी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तब तक आपने पे नहीं की. तो देखिए ये हो रही है बेसिकली पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स ऑन विच इक्वलाइजेशन लेवी हैज नॉट बीन डिडक्टेड और आफ्टर डिडक्शन has not been paid on or before the due date of furnishing return of income, then that expenditure will be say disallowed. However, where in respect of any such consideration equalization levy यदि आपने डिडक्ट किए सब्सिक्वेंट ईयर में, डिडक्ट की है प्रीवियस ईयर में, पर पे किए आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउ हो जाएगा डिडक्शन के लिए, वो एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा डिडक्शन के लिए जिस साल आपने इसका क्या किया है? इक्वलाइजेशन लेवी का पेमेंट किया है. ठीक है. फिर आता है इनकम टैक्स, जिसमें फॉरेन टैक्स भी शामिल है, जिसका आप क्या लेते हो? क्रेडिट लेते हो अंडर सेक्शन 90, 90A, 91. उसके अलावा वेल टैक्स, ये क्या है? डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है. इनकम टैक्स और एनी टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, या जो टैक्स आपने पे किया है बेसिकली जिस पे रिलीफ एडमिसिबल है 1998, 91 में, उसका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा. इसी हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे कोई स्पेशल रॉयल्टी या प्रिविलेज फीस वगैरह चार्ज कर रहा है, तो पीएसयू स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ये पे कर रही है, तो ये एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा. तो एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस, प्रिविलेज फीस, सर्विस चार्ज or any other fees or charge by whatever name called, which is levied exclusively on or on which is appropriated directly or indirectly from state government undertaking by the state government, डिसअलाउ हो रहा है. सिमिलरली यदि सैलरी पे की गई है आउटसाइड इंडिया,
या फिर नॉन रेजिडेंट को पे की गई है ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड और पेड देयर फ्रॉम, वो डिसअलाउ हो रहा है। जो कंट्रीब्यूशन पे किया जा रहा है टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, जब तक कि इफेक्टिव अरेंजमेंट नहीं कर लिए जाते कि टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स, देन दैट सच एक्सपेंडिचर विल बी से डिसअलाउड। और अगर कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर क्या करता है, पेज टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स of employees. ये डिडक्शन एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा। जो टैक्स बेसिकली पे किया जा रहा है वो एम्प्लॉय के एंड में क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर आता है 40A। 40A बताता है आपको एक्सपेंसेस और पेमेंट्स, एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल in certain circumstances, in certain circumstances। ये बता रहा है एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो सबसे पहले 40A बोलता है सबसेक्शन 1 कि भाई दिस सेक्शन विल बी गिवन an overriding effect over provisions of section 40। ठीक है, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया जाएगा ओवर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40। over the other provisions, 40 नहीं, over the other provisions, while computing PGBP। ठीक है, while computing PGBP। तो कहते हैं, देखिए सबसे पहले है 40A2। 40A2 क्या बोल रहा है, पेमेंट टू रिलेटिव्स या स्पेसिफाइड पर्सन्स, पेमेंट टू रिलेटिव्स या फिर क्या, स्पेसिफाइड पर्सन्स। तो कहने का मतलब क्या है, तो देखिए यदि असेसी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर जिसमें उसने स्पेसिफाइड पर्सन्स या रिलेटिव्स को पेमेंट किया है और वो एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है, हैविंग रिगार्ड टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वो एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है, हैविंग रिगार्ड टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फैसिलिटीज फॉर विच पेमेंट इज मेड, या लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द एसएससी, या इट इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द एसएससी, या बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय और एक्रूइंग बाय द टू द एसएससी देयर फ्रॉम। तो जो भी एक्सपेंडिचर जो एक्सेसिव और अनरीजनेबल है, वो एक्सपेंडिचर जो एक्सेसिव और अनरीजनेबल है, द सेम विल बी से डिसअलाउड। फॉर एग्जाम्पल देखिए 25 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर इनकर किया, 25 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर इनकर किया, ठीक है, और जो आपने जो लिया है ये रिलेटिव से लिया है और फेयर मार्केट वैल्यू इसी चीज की आ रही है 20 लाख रुपए। तो भैया आपने इतना ज़्यादा पेमेंट क्यों किया, एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों किया, तो ये 5 लाख रुपए क्या हो जाएंगे आपके, डिसअलाउ हो जाएंगे। ये 5 लाख रुपए आपके क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। तो यदि एसएससी ने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है विच इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल, किसको पेमेंट कर रहे हो, स्पेसिफाइड पर्सन को। अब एसएससी कौन है, यदि एसएससी इंडिविजुअल है तो किसको पेमेंट करे ये इंडिविजुअल, अपने रिलेटिव को, ठीक है।
हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट, ये रिलेटिव है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है एक्सेसिव और अनरीजनेबल, ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। असेसी यदि कंपनी है, फर्म है, एचयूएफ है, ईओपी बीओआई है, तो उस केस के अंदर कंपनी अपने डायरेक्टर्स को करे पेमेंट, ये डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को करे। फर्म पार्टनर्स को करे या पार्टनर्स के रिलेटिव्स को करे। एचयूएफ मेंबर्स को करे या मेंबर्स के रिलेटिव्स को करे। एओपी अपने मेंबर्स को करे या मेंबर्स के रिलेटिव्स को करे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। इन केस इफ एनी इंडिविजुअल क्या क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इन बिजनेस ऑफ असेसी, तो क्या ये असेसी पेमेंट करे किसको, इस इंडिविजुअल को, या इसके क्या रिलेटिव को, और वो क्या हो, एक्सेसिव और अनरीजनेबल हो, हैविंग रिगार्ड टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी हिसाब से किसी कंपनी का, फर्म का, एओपी बीओआई का, एचयूएफ का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बिजनेस ऑफ असेसी में। तक असेसी कंपनी को पेमेंट करे या उसके रिलेटिव्स को करे, उसके डायरेक्टर्स को करे या उनके रिलेटिव्स को करे, या उस कंपनी को करे जिसमें इस फर्स्ट मेंशन कंपनी का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। फर्म पार्टनर्स को करे, पार्टनर्स के रिलेटिव्स को करे, असेसी पेमेंट कर रहा है फर्म को जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या उनके पार्टनर्स को या उनके रिलेटिव्स को। एओपी को करे या उनके मेंबर्स को करे या उनके रिलेटिव्स को करे। एचयूएफ असेसी पेमेंट कर रहा है एचयूएफ को या उसके मेंबर्स को या इनके रिलेटिव्स को। तो कहने का मतलब क्या है, ये इस तरह से ये रिलेशनशिप्स आ रही हैं। इसी हिसाब से अगर कोई डायरेक्टर है कंपनी का, उस डायरेक्टर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है असेसी के बिजनेस में, तो डायरेक्टर की वर्च्यू से उसकी कंपनी आ गई, कंपनी के अदर डायरेक्टर्स आ गए, डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स आ गए। इसी हिसाब से किसी पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एसएससी के बिजनेस में, तो पार्टनर की वर्च्यू से उसके फर्म आ गई, फर्म के अदर पार्टनर्स आ गए और उनके रिलेटिव्स आ गए। एओपी और बीओआई का या एचयूएफ का के मेंबर है, उसका क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एसएससी के बिजनेस में। ओके, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एसएससी के बिजनेस में।